So people are saying last interview we didn't get the suit. I didn't get the suit. You can see the dice. We are increasing women empowerment. So you can see all the ladies on the dice. So we are changing. One coordinator will be from our region coordinator group henceforth. So starting from today. So now coming back to our second session, our today's speaker is in-house speaker, our beloved King Lion Lady, whatever you name call. But I'll tell you other things which are not in public domain or not mentioned in the brief introductions profile. I know her before her marriage. So and both are my friends. So her husband is also my friend and she also my friend. So normally say self-made man. I can so I can vouch for her. She is a self-made lady. I have seen her and her family struggle before marriage. I have gone to her house also. I mean, I will not say, but the kind of struggle I have seen. She is a self-made lady with the kind of hard work she has done, and she has reached to this stage because everyone, I'm sure everyone knows her in CF fraternity. She is in RCM now, but the kind of hard work or struggle she has gone through, you know, she didn't have money for CA coaching. She has studies her own without any tuitions or coaching. And I have come across her, admiration in her CA firm where she was working. That CA firm, Rokania and Rokania, was a friend of my uncle. So I go to that firm along with my uncle. Then वो CA firm का partner बोला था यार मेरे एक लेडी है बहुत अच्छा काम करती है लेकिन अभी उसकी शादी होने वाली यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं तुम्हारी शादी तो हो रही हो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि उसकी शादी मेरे फ्रेंड के साथ नहीं हो रही so that kind of jokes apart but that kind of admiration she get wherever she goes and in office also I have going to her office on regular basis. I'm a working professional and my lifestyle is very, very hectic. But because of her only, I accepted this convenership post. So and she's helping me out of the way. And all the, necessary work for this convenership, she's helping me through day in, day out. And she has given place to our Manad also in our office. So, I request you all to just give a round and now I request a formal as a protocol, so no introduction required, but still as a protocol, I request Pooja Sangai to give a formal introduction after followed by the memento. Hello everyone. Welcome back after the C session. So as you all know, CA Pinky Kedia, she is the founder and partner of Miss Kedia Singhania and Company, Chartered Accountants, a prominent accounting firm. And also along with that, she is qualified as an independent director, demonstrating her proficiency and corporate governance and broad responsibilities. And her primary focus areas are stat audits, bank audits, and cooperative advisory services. Also, she has been an active member of WIRC. I think all of you know about that. And she has held various positions in WIRC, such as Treasury of WIRC ICI for 24-25. She headed CA Student Association, largest with more than 1 lakh students in the year 2023-24. Also, in addition, she had taken leadership roles in several committees. One of the commendable achievements that she has made is initiating the Swachh Bharat Jagrata Abhiyan, a campaign for cleanliness and hygiene. And additionally, most commendable is her project Radhe Hum Savdhan. So this is for underprivileged children to
educate them about the good touch, bad touch. And I think that's the most commendable thing that she could do for girls basically in our society. And she has various, I think there are many commendable achievements that she has made. So give her a big round of applause for CA Pinky Kedia. Which one? Oh, Guinness World Record. Again, one more achievement, Guinness World Record. She has, I think it's very proud for all our CA fraternity that we have such CAs in our WIRCA, and I'm really proud to be a member of CA Club Circle where she is also there. Thank you. ये चलेगा फॉलो माय हैंड माइक चलेगा बस आवाज ठीक से आनी चाहिए इसको ऊपर मत नहीं कर so good afternoon all because I think 12 हो गए हैं तो and जितना इमोशनल इंट्रोडक्शन ललित जी ने दिया है शायद ही किसी ने अभी तक दिया होगा मेरा because no one know about my life before my marriage जो भी यहाँ पर है उनको किसी को नहीं पता है मैरिज के पहले की मेरी लाइफ एंड they are not connected with my after marriage and pre marriage life so thank you ललित जी and मुझे तो लग रहा था कि रुला ही देंगे ये जिस हिसाब से बोल रहे थे that's why we stopped him you know stop and जैसा हमारे जिसने इंट्रोडक्शन दिया पूजा ने जैसा कहा कि शी इज वेरी लकी दैट शी इज द member in this CA study circle so this is correct this is very right you are saying that we all are very fortunate that we are clubbed as a study circle here because study circle में अब जैसा इन्होंने मुझे बताया कि प्री मैरिज मेरी जो लाइफ थी एंड मैं यहाँ तक भी जो पहुंची हूँ मेरी जर्नी का 75% मैं बोल सकती हूँ जेबी नगर स्टडी सर्कल को मैं दे सकती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही आती थी ऑडियंस में बैठती थी एंड दे पिक्ड मी अप दे वर बिहाइंड मी कि नहीं तुमको आना ही है कोर ग्रुप में देन दे पिक्ड मी अप फॉर डिप्टी कन्वेनर and I said at that moment I have a daughter of 2.5 years and my son was at that time of 10 years and nobody were at home to take care of my kids but that the support of our past conveners was so much that I was able to do that and I think I justified my post as a deputy convener and convener also after that they forced me to come at WIRC क्योंकि एक फीमेल के लिए घर में यदि हेल्प नहीं हो साथ में ऑफिस घर बच्चे सब संभालते हुए WIRC की काउंसिल संभालना इट्स अ वेरी टफ जॉब नेक्स्ट ईयर चेयरमैन but they all gave me the courage to be there and they supported me at I can say 110%. That's why I am here in front of you as a regional council member. एंड जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरे प्रोफाइल में कुछ छूट भी रहा है तो पास्ट कन्वेनर ही बता दे रहे कि ये छूट रहा है प्रोफाइल में so they know deeply about me very much so I am overwhelmed for that
अभी आते हैं दो अनाउंसमेंट करने। कन्वेनर ने कहा जो मेरे छूट गए थे शायद कन्वेनर से, वो मेरे लिए बताते बताते इतने इमोशनल हो गए कि लेकिन बट आई श्योर दैट टू programs are social events from WRC or you can say from JB Nagar Study Circle supported by WRC, क्योंकि स्टडी सर्कल कोई नॉन सीपी इवेंट नहीं कर सकता है, so we have to be given like a program of WRC. So that is the program on the CA day. 1st July is the CA day. So first program is on yoga day 21st June, and that program will be in the morning at 7 to 8, and that program will be at in JB Nagar Surya Hall. लक्ष्मी नारायण सूर्या हॉल से बहुत लोगों को नहीं पता चलता, JB नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर में सूर्या हॉल है. So you all are invited there. Come and 30 yoga mats is there. Are there to for only first come first on first come first serve basis, and you will get a delicious lunch, delicious breakfast. No breakfast. And fruits and juices only. आप तो बोले थे खिलाओगे इस बार, खत्म हो जाएगा, लंच कैसे करेंगे? ये देखिए सरप्राइज दिया इन्होंने. Fruits and diamond juice only. योगा के बाद वही मिलता है. हाँ, योगा के बाद वही मिलता है. Earlier when I told him that only fruits and juice, then he told no, I will keep full snacks. But members से मिलता है. Joke apart. And second event is on for the blood donation camp, which is also our signatory event, a blood donation camp with medical checkup, and that program will be here. Our hospitality partner is Kohinoor. So you all have to come on 11th July, Saturday, not Sunday. So please mark in your calendar, because every time we are doing on Sunday, this time we are doing on Saturday. So please mark your calendar for 11th July for blood donation camp and medical camp. Yeah. So on 12th also we have a seminar. That's why we don't want to keep both the things together. So we kept blood donation and medical camp on 11th. And मैथ्स के अलावा अभी हमारी जो आते हैं पार्टिसिपेंट मोर देन 250 पार्टिसिपेंट हैं, तो 300 तक भी जा रहे हैं, तो इसी हॉल में दोनों चीज मैनेज करना भी मुश्किल है. That's why we kept separately. Okay, so please do come on both the event. And my compliment to our JB Nagar Study Circle convener for successful participation and registration in Tech Series, Tech Saturday. Within 2 hours, it's become full. And yeah, in waiting list there are more than 25 to 30 people are there. And I think actually इसमें कन्वेनर को आप लोग प्रेशर मत कीजिए, क्योंकि ये वर्कशॉप है, एंड वर्कशॉप में हम 50 से ज्यादा लोगों को नहीं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं दे पाएंगे. So the purpose of that workshop will defeat. So we can't increase the size of that batch, but definitely we will try to do more and more batch in the future if we come across. और हमें इंस्टीट्यूट से परमिशन मिलती है, क्योंकि उसमें फिर हम सीपी क्रेडिट नहीं दे पाएंगे. उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा काउंसिल वाली फील आ जा रही है बोलते बोलते. उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि स्टडी सर्कल 1 महीने में सिर्फ 12 सीपी आवर दे सकता है, जनरेट कर सकता है. मेरे को 15 लोगों ने अप्रोच किया, बोले सीपी आवर नहीं चाहिए. हाँ, तो मैं वही बताने जा रही हूँ कि सीपी आवर हम ओनली 12 सीपी आवर के लिए ही 1 महीने में प्रोग्राम कर सकते हैं. तो दैट 12 आवर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ यदि हम कोई और नया बैच स्टार्ट करेंगे, देन वी हैव टू डू विदाउट सीपी आवर, एंड वी विल प्लानिंग टू फ्लॉट अ गूगल फॉर्म. इफ you are interested to take that batch without CP hour, you can fill that form, and we will try to launch another batch without CP hour. And but fees with fees to that आप बोलो. Per head cost is coming around 3,500. So from JB Nagar, for benefit of JB Nagar members, and for last 2 months members were pressurized to have some AI session, we have subsidized by more than 50% cost per member. So the past convener will going to kill me. You are going to subsidize. अभी तो sponsorship event लाया नहीं एक भी, और यहाँ से उधर बांट रहा है, दूसरा उसका खुलेगा. तो 50 members workshop, क्योंकि फिजिकली आपको लैपटॉप लाना है, वहां पे स्पेस कॉन्स्टेंट होगा, मूवमेंट होगा. अगर 50 से ज्यादा होंगे तो it will not be worthwhile for the members who are attending. So it's a practical workshop. So we will float in next week. We will float the Google form. So please fill the form.
but honestly fill the form. You, if you generously want to do the that program, ये सेमिनार के जैसे गूगल फॉर्म मत भरिएगा कि भरा तो ठीक है, नहीं भरा तो ठीक है, भर दिया आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि whether we have to make extra batch or not. Okay, so now I have to come to my topic, taxation, salary, HP, other source and PGBP. So someone asked me कि आपको मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, आप बताने वाले क्या हो. So that I want to clear that it's a very simple process and I want to take a transition कि आपको अभी हमें दो चीजें दिमाग में जा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो रिटर्न फाइल करनी है, हमें मार्च 26 की जो रिटर्न फाइल करनी है, that return we have to file in old act. And for current year, when the client is asking us about anything, we have to follow Income Tax Act 2025. तो बहुत डिलाइमा चलता है, बहुत कंफ्यूजन चलता है. तो जो मेन कंफ्यूजन जिस पार्ट में होते, I had not covered all the things. I'm saying I'm not covered all the things, but major things which we all are facing problem. Okay, so in salary, so it's my agenda. Salary income, house. I have not taken capital gain also. I have not taken more. This is like the income which will affect our this year planning, you can say. तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों का, तो वो सब हमने नहीं इसमें कवर किया है. यस, एंड फॉर कैपिटल गेन ऑलरेडी program has been decided and faculty has been booked for capital gain to us. Salary income, house property, other source, PGBP, and what is the transition between 1961 and Act 2025, and what is the emerging issues between that. So for in income tax 1961, if we go through the comparison for filing of income tax return, it will the financial year 25-26, and for assessment of income before TY 26-27, 1961 assessment Income Tax Act 1961 will be followed. And in this year filing, we have to make the comparison between old regime and new regime, which regime is beneficial for our client. Section 10, 24, etc. all are operative. कुछ भी उसमें नए साल के एक्ट 2025 के हिसाब से उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, जो भी पुराना था वही है. एंड टैक्स पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या करना है, 1961 डालें कि 2025 डालें. सो व्हेन यू आर पेइंग एनी टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, you have to follow Income Tax Act 1961. And if you are paying anything, any tax, you have to follow Income Tax Act 2000 for financial tax year 2026-27. You have to follow Income Tax Act 2025. Like अभी बहुत लोगों के TDS अभी तक मार्च 26 के फाइल नहीं किए लोगों ने, तो उसमें कंफ्यूजन आ रहा है कि अभी इस साल फाइल कर रहे हैं, बिलेटेड है, तो कौन सा एक्ट डालना है. तो उसका ड्यू डेट से कोई भी रिलेशन नहीं है. यदि इफ यू आर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, you have to choose Income Tax Act 1961. और इस साल तक का फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक का असेसमेंट भी पुराने साल में ही, पुराने एक्ट में ही होगा, नया एक्ट उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा. सेक्शन 89(1) रिलीफ इज ऑल्सो एप्लीकेबल in 1961. If you will come to Income Tax Act 2025, it reflects the previous year and assessment year. Now only tax year is there, so no confusion of previous year and assessment year. And in section 536(3), it is written in Income Tax Act 2025 that any reference of a tax year shall be read as a reference to the corresponding previous year under the old act. तो कहीं भी टैक्स ईयर लिखा है तो वो आप प्रीवियस ईयर, ओल्ड एक्ट का प्रीवियस ईयर ही समझ के चलो, उसको असेसमेंट ईयर नहीं लिखना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को आदत है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हर जगह असेसमेंट ईयर लिखा होता है. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर हैबिट कि वो जो भी लिखा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, इट इज फॉर टैक्स ईयर, देयर इज नो एनी असेसमेंट ईयर. एंड फॉर एडवांस टैक्स, अभी
15 जून को कल एडवांस टैक्स की लास्ट डेट है, तो एडवांस टैक्स हमें इस साल का भरना है। फॉर दैट इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल बी एप्लीकेबल। तो क्लाइंट जो भी भरता है उनको बोलिए साइट पे ठीक से देख के भरे, अदरवाइज ये चालान चेंज करना ना अभी बहुत बहुत टफ टास्क है। 2-2 महीने तक भी चालान के ईयर और ये चेंज नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन ट्रांजेक्शन फेज, एंड जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं चेंज कर पा रहे हैं। सो प्लीज बी अवेयर फॉर दैट एट द टाइम ऑफ चूजिंग द proper act in that. Also, there is a Income Tax Act 2025, they are saying it's a simplified language and there is no proviso. I fully agree with that it's in simplified language, but there is no proviso, but it is not easy also. If there is no proviso and in simplified language, that doesn't mean it's very easy. Now it's in tabular format and schedule system. मतलब आप यदि एक एक्ट पढ़ने जाते हो, वो एक रूल को रेफर करता है, उस रूल में पढ़ने जाते हो तो शेड्यूल बोलता है, फिर शेड्यूल में पढ़ने जाते हो तो फिर वो रूल बोलता है। मतलब आप ऐसे घूम जाते हो ना उसमें कि कहां से कहां तक पहुंच गए। तो आप ये सोच के मत चलना कि बार बार ये लोग जो बोल रहे हैं कि बहुत इजी है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, तो आप पढ़ोगे तो 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आप लोग सब बहुत रिनॉन्ड और बहुत सीनियर सीए हो, बट व्हाट आई सजेस्ट, प्लीज डोंट टेक इट इजी। जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट में आपको लोगों को दिखाती हूँ। अरे इसमें नहीं आ रहा। Because all the section, many of the sections are in tabular format. Like if you will go through the section 19, yes, all the many sections are in tabular format. Schedules reference जो भी दे रहे हैं वो सब टेबल रेफरेंस में है। जो आप सेक्शन में पढ़ रहे थे वो उन्होंने टेबल में दिया है, तो बट टेबल में देने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। मतलब जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, यहाँ टेबल बना लो, वहां टेबल बना लो, टेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि वो इजी है, उसको पढ़ने में बहुत टफ है अभी भी। एंड मोस्ट डिडक्शन एंड एग्जम्पशन केप्ट देयर, लाइक इनकम टैक्स एक्ट 1961। यार है मेरे को इसमें से जो मैं लिंक ढूंढ रही थी ना, वो लिंक नहीं खुल रहा था। Now, in case of PAN mandatory, PAN is mandatory in 2025 also, but there are some other transactions they had included, some transactions they had excluded. Like they had increased the limit of income tax cash withdrawal and cash deposit. So like this, they had added something and they had excluded something for PAN applications, PAN mandatory PAN applications that. And form number 60 also be changed, and now that form is become form number 97. Okay, and they had included now earlier for purchase of motor vehicle, for transaction of motor vehicle, PAN number was not mandatory. Now it's a mandatory if you purchase any motor vehicles. Total payment up to 50,000 was earlier exempt. Now it becomes 1 lakh. Till 1 lakh you don't need any PAN number. And the entity to whom you have filed that form 60, they have to submit half yearly form in form number 61. So this is the PAN number mandatory requirement and transition planning. It's because we are in the middle of tax year 26-27, already 2.5 months passed. So we should plan for this year also according to 2025. Tax rate for Income Tax Act 1961 and Income Tax Act 2025.
Most of the tax rates are similar. No any changes has been done in corporate like BOI, AOP, and cooperative society. In 1960, in 2025 and 1961, both old regime is there. In old regime, tax rate is written in the table I had given. For senior citizen, 60 to 80, exemption limit is 3 lakh under old regime, and for senior super senior citizen, it is 5 lakh. Under new regime, tax rate is this much for up to 60 years of age, and there is no change in individual AOP. Like ये वाला टेबल आपको दोनों एक्ट में चल जाएगा, पिछले साल भी इस साल भी. तो ये जो चेंजेस है वो मैं अलग से बता दूंगी, जिसमें चेंजेस नहीं है वो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि ये दोनों ही साल में यही टैक्स रेट लगनी है. मैट में उन्होंने चेंज किया है. मैट में उन्होंने 15% से 14%, 1% इतना अपने लोगों के ऊपर वो किया है कि 1% कम कर दिया. तो 1% टैक्स रेट कम है मैट में. 1961 के में केस में 15% है और 2025 मींस करंट ईयर 14% का मैट का टैक्स है. आप एक चीज में देखोगे कि जब आप ओल्ड रिजिम देखते हो तो उसमें 2 to 5 एंड अबव 5 का भी क्लॉज है. तो अबव 5 में 37% का आपको सरचार्ज लगता है इफ यू आर सेलेक्टिंग ओल्ड रिजिम. बट इन केस ऑफ न्यू रिजिम 37% का सरचार्ज नहीं है. इन न्यू रिजिम अबव 2 करोड़ ओनली 30% का ही सरचार्ज, 25% तक ही सरचार्ज है. तो एक ये यदि 5 करोड़ से ऊपर है ओल्ड रिजिम में तो आपको सरचार्ज ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. Then tax rate, short-term capital gain is 20%, long-term capital gain 12.5. Exemption limit अपने मार्च 25 में 1 लाख थी, मार्च 26 में 1.25 लाख करी है, एंड 2025 में भी वो 1.25 लाख ही है. फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट 35% है. एक चेंजेस किया उन्होंने सरचार्ज में. सरचार्ज इज रिस्ट्रिक्टेड टू 15%. जैसे आपने देखा टैक्स ब्रैकेट में 15% से ऊपर 25% भी सरचार्ज गया है, 37% सरचार्ज भी गया है. तो इन केस ऑफ डिविडेंड and capital gain on sale of transfer of security under these sections arise to individual HUF, AOP or BOI, it's restricted to 15%. तो आप इन सब SEC इन सब मतलब ये कॉर्पोरेट या LLP को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, even if your income is more than 2 crores, the surcharge will be limited to 15% on these incomes. लास्ट टाइम भी यही 15 था ना. 25 में नहीं था, 26 से स्टार्ट हुआ है. यस, 25 में नहीं था 15% वाला. In case of AOP, if all the members are companies, then also the surcharge rate is 15%. Now for rebate under section 87A, under old regime 87A, limit is 5 lakhs and 12,500 you will get the rebate. And that rebate is ये थोड़ा सा कहीं किसी को इसकी नोटिस भी आई होगी, डिमांड भी आई होगी, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेके काफी कंफ्यूजन थे इसमें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रिबेट अलाउड नहीं है ओल्ड रिजिम में भी, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेके काफी कंफ्यूजन थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रिबेट है कि नहीं है. बट नाउ इट्स क्लियर दैट फॉर इन ओल्ड रिजिम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 87A का रिबेट मिलेगा, बट द टैक्स इनकम सब्जेक्ट टू स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्योंकि उसमें फ्लैट 30% आपको टैक्स देना होता है. तो इन दैट केस यू विल नॉट गेट द रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन ओल्ड रिजिम. एंड इन न्यू रिजिम you will your income limit is 12 lakh and maximum rebate you will get 60,000, and also in that स्पेशल टैक्स इनकम जो भी है उस पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा. उस पे आपकी इनकम यदि 12 लाख से कम भी है देन ऑल्सो यू हैव टू पे टैक्स. न्यू रिजिम में एक उन्होंने बेनिफिट अच्छा किया है मार्जिनल रिलीफ का.
मार्जिनल रिलीफ अपने पहले भी बीच में भी स्टार्ट किया था इन्होंने। मार्जिनल रिलीफ में इफ द टैक्स अमाउंट इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स इनकम, जैसे 12 लाख से ऊपर आपकी जो जितनी इनकम जा रही है, यदि आपका टैक्स अमाउंट उतने से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट टैक्स अमाउंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट इंक्रीज। लाइक जब हमने कैलकुलेशन किया तो 12,70,000 तक आप कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो 70,000 है वो आपका रिबेट में मार्जिनल रिलीफ की वजह से निकल जाएगा। Relief is 60 only. The additional income. Yes, income additional. above 12 lakhs. Yes. The tax amount will be limited to that. यस, वही No tax दिखाने होगी। अब अगर आपका 12,20,000 रुपया है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 20,000 है। प्लस सरचार्ज सेपरेट, सरचार्ज नहीं आता है एजुकेशन से। एजुकेशन सेस आएगा 12 के ऊपर में। Taxable income up to 12 lakhs rupees, there is no means you will get full rebate of 16. Anything excess of 12 lakhs, you have to pay the difference. That is the income. Suppose 12 lakh 20,000, then you will have to pay 20,000 as a after marginal relief. 20,000 will be the tax levy. No, sir. I am little bit disagree on that because I said that, but yes, I will check that. Now, in salary income, whatever the changes has been made. In salary income, I had covered the some changes made in labor code also, because we for current year we have to plan give the consultancy and advisory to our client also that salary structure क्या रखना चाहिए। बहुत सारे मतलब अभी मैं तो यही बोलूंगी कि थोड़े थोड़े हमें कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी वर्क में जाना चाहिए, क्योंकि हम फ्री में देते हैं लोगों को एडवाइस, उसके बजाय अब उसका फीस चार्ज करना स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज आई हैड सीन दैट इन कॉर्पोरेट बिग फोर्स आर गोइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड एंड दे आर चार्जिंग मल्टीपल लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको काम मिल रहा है कॉर्पोरेट्स में, एंड वी आर नॉट डूइंग दैट। So I had covered some parts of labor code also. That in now what the core area changed, that now the salary plus dearness allowance, it should be the 50% part of your total CTC. पहले थोड़ा ऊपर नीचे करते थे, अभी बेसिक सैलरी और डीए मिला के आपका टोटल सीटीसी का 50% होना कंपलसरी है। एंड द स्ट्रिक्टली कैप in total allowance like travel allowance, special allowance, it should not be more than 50% of your total CTC. तो अभी दो पार्ट में हो गया कि आपका सैलरी एंड बेसिक सैलरी एंड डियरेंस अलाउंस 50% पार्ट होगा, एंड आपका अदर अलाउंस जितने भी हैं वो 50% होंगे। इसमें बेनिफिट लेबर को भी है, एम्प्लॉयर को भी है, बिकॉज व्हेन दे आर फिक्सिंग दिस लिमिट, द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सब उसी से ही लिंक्ड होते हैं। उनको ज्यादा जाएगा, पेंशन में ज्यादा जाएगा, ग्रेचुटी में ज्यादा जाएगा, तो दे विल गेट मोर अमाउंट इन दैट। इन ओल्ड, वन मोर गुड थिंग्स इज देयर दैट इन ओल्ड सिस्टम employees were waiting for 30 to 90 days to receive their pending salary and other dues, but now within 2 working days employer had to clear all the dues. So ये employer के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि 2 दिन के अंदर उसको सारे ड्यूज क्लियर करने हैं अपने एम्प्लॉय के आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये उसमें क्या क्या कवर होगा, पेंडिंग सैलरी, लीव इनकेसमेंट एंड एनी अदर वेजेस रिलेटेड पेमेंट, बट ग्रेचुटी एंड ईपीएफ ये इसमें 2 दिन में कवर करना नहीं है, क्योंकि ये अदर ऑर्गेनाइजेशन से आप उनको मिलेगा, बट जो भी एम्प्लॉयर के पार्ट से है वो 2 दिन के अंदर उनको क्लियर करके देना होगा, नहीं तो लेबर कोड में वो डिफॉल्ट होगा उनका। अर्लियर बहुत सारी चीजें ना परक्विजिट में थी सैलरी में, नाउ परक्विजिट के बदले उन्होंने बहुत सारी चीजों को अलाउंस में शिफ्ट कर दिया। परक्विजिट होती थी तो हम परक्विजिट में उसको ऐड करते थे एंड उसको फिर जितना माइनस करना होता था करते थे। परक्विजिट पूरा टोटल अपना सैलरी में ऐड होता था। अभी इन्होंने क्या किया है, थोड़ा बहुत अच्छे भी इसमें काम किया, उनको पता चला इन्फ्लेशन बढ़ा है तो थोड़े वो बढ़ाने चाहिए,
So what they had made the changes, exempt किया है जो, if in case of car, it was मतलब 1961 में बहुत पहले से चल रहा था, 1962 rules में 1,800 per month and 2,400 per month. In case of employer is reimbursing the car and safer fees charges, and इसमें एक ये भी है 1.6 liter cubic उसकी जो capacity है. Then in case of employer, earlier regime, it was 1,800 per month and 2,400 per month. But in new regime, they had increased. अभी उसमें भी petrol price cover होगा कि नहीं होगा? I have doubt about that because the price of petrol is rising too much. So now they are giving 5,000 per month and 7,000 per month. And if there is a safer, then from 900 to 3,000 they had increased. And this is available in new regime and as well as in old regime. If car is partly used for official and personal purpose and the payment is made by the employee only, then they will then the exemption limit is 600 per month and 900 per month plus 900 safer. But in new act it is 2,000 per month and 3,000 per month. एंड सेफर का भी इन्होंने सबका अच्छा बढ़ा दिया, 900 से 3,000 कर दिया कि उन्हें भी पता है कि इतने में कोई भी ड्राइवर अभी नहीं मिलता है. एंड बोथ द कार अलाउंसेस यू कैन गेट द एग्जम्पशन इन न्यू वर्सेस ओल्ड एक्ट. In case of free education, if that education institute is owned and maintained by employer, then earlier it was 1,000 per month per child. Now it is 3,000 per month per child. In case of concessional loan and interest-free loan, and it is for medical treatment of disease, then earlier it was rupees 20,000. Now it comes to, if the loan amount is less than 2 lakh, it is exempt. Interest पे आपको exemption मिल जाएगा. Free food and non-alcoholic beverage provided by the employer. यदि कैंटीन फैसिलिटी है या आप खाना दे रहे हो, देन इन केस ऑफ 50, पहले जो था वो 50 रुपीज पर मील था, एंड वो भी उसमें भी लिमिटेशन रखी हुई थी कि वर्किंग आवर में होना चाहिए एंड बिजनेस प्रीमाइसेस में हो, या फिर आप गिफ्ट मील के वॉचर दो. अभी भी वही है. एंड नाउ बट इट्स मील प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 50 to 200. Employees provided gift and vouchers and tokens 5,000 per month per annum. Not it is not per month, it is per annum in aggregate. It become 15,000 per annum in aggregate. ओवरसीज ट्रीटमेंट का इन्होंने अच्छा किया है कि यदि ओवरसीज ट्रीटमेंट के लिए यदि आप को देता है एम्प्लॉयर, कुछ आप देता है इनका फंड वगैरह कुछ देता है, then tax it will be tax free if GTI is less than 2 lakh. Earlier it was less than 2 lakh. Now it become 8 lakh. So 2 लाख से 8 लाख तक का उन्होंने वो exemption दिया. Now come to allowance. In allowance, there is also welcome changes. That earlier for 50% there were only 4 cities: Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, which is the metro cities, but capital city you can say. But now they had added 4 more cities like Bengaluru, Pune, Hyderabad, and Ahmedabad. So for these 4 cities also you will get the exemption of 50% instead of 40% in new act. But अभी जो रिटर्न फाइल करनी है उसमें वो 4 सिटी ऐड नहीं होगी. अभी की रिटर्न फाइलिंग में ये पहले वाली 4 सिटी रहेगी. करेंट ईयर के लिए आप प्लान कर सकते हो ऐसा. यस, तो वो मैंने लिखा भी है कि न्यू रिजिम में आपको नहीं मिलेगा, पुराना. In case of transport system provided by the employee, 70% of such allowance, maximum to 10,000 था पहले, वो अभी बढ़ के 70% और 25,000 किया. मैंने इसमें ना आप लोगों को रूल्स भी साथ में लिख के दिए हैं, सेक्शन भी साथ में लिख के दिए हैं कि यदि आप लोगों को कुछ भी वेरीफाई करना है, कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन गो थ्रू एंड चेक दैट ऑन वेबसाइट ऑल्सो. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पहले जो था वो हमने, ये जो था वो परक्विजिट था. जो फर्स्ट वाला देखोगे कि यदि मेंटेन एंड ओन बाय एम्प्लॉयर है, दैट इज परक्विजिट, बट इट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. सो बोथ आर डिफरेंट. So in children education allowance, 100 per month per child. Now it become
3,000 per month per child. तो they want कि ज्यादा पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, so they want to give the exemption for that. So these three are also welcome changes. In children hostel allowance also they had increased the amount. In दिव्यांग transport allowance यदि दिव्यांग को देते हैं, then also they had increased from 3,200 to 15,000 per month in metro city, and in other city it is 9,000 per month. So government का थोड़ा ये सब लोगों के लिए तो अच्छा केयर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. LTC में भी काफी कुछ चेंजेस किए हुए हैं कि लीव ट्रेवल अलाउंस में भी कितने क्या होगा. अंडर न्यू टैक्स regime, default regime will be new regime. You have to change old regime or new. If you want to change come to old regime, you have to opt out from new regime to old regime. अभी बहुत सारे केसेस में मैंने देखा, मैं आपको यहाँ पर मैं केस स्टडी नहीं लेके आई, लेकिन बहुत सारे हम लोगों को लगता है कि न्यू रिजिम में टैक्स कम लगेगा, बट इट इज नॉट ट्रू. बहुत सारे केसेस में ओल्ड रिजिम में आपको टैक्स का ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. तो यू कैन गो टू ओल्ड रिजिम ऑल्सो इफ देयर इज अ टैक्स बेनिफिट इन दैट, because in new regime you will get only standard deduction from family pension and contribution to Agniveer corpus fund. कोई 10वें डिडक्शन अलाउंस आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलते. न्यू एग्जम्पशन उन्होंने एक लेके जो है डिसेबिलिटी पर्सन फॉर आर्म फोर्स, ये एक बहुत अच्छा वेलकम चेंजेस है. हमारे बहुत सारे आर्म फोर्स है जिनका एट द टाइम ऑफ वॉर या कोई भी उनके वर्क प्लेस पे उनके कभी कोई हाथ में हो गई प्रॉब्लम या पाँव में हो गई, so they will not be the perfect for their force. तो उसके लिए भी इन लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पशन लेके आए कि यदि if they are not able to perform their duties in armed force, so there will be more exemption for them. In standard deductions, if you in old regime there is 50,000 and in new regime 75,000, वही 2025 के लिए भी वही है. And this is also very welcome changes in arrears advance salary. If you are getting if any taxpayer is getting gratuity, pension, arrears and advance in 1 year, तो क्या होता था एक ही साल में बल्क ऑफ अमाउंट आता है तो टैक्स ज्यादा होता है. Then they can file the 89(1) under section 89(1), but that is now replaced under section 157 and फॉर्म भी चेंज हो गया है. फॉर्म 10E के बदले फॉर्म 39 हुआ है. एंड इसमें अभी इतना अच्छा कि फॉर्म 10E में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं था, कैलकुलेशन नहीं आते थे, तो पता नहीं चलता था कि हमारी कंप्यूटेशन क्या आएगी. नाउ दैट फॉर्म नंबर 39 विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड कंप्यूटेशन भी उसमें दिया हुआ है. बहुत सारी चीजें आप जब भरोगे तो आपकी ऑटो फील्ड ऑप्शन सारे उसमें आ जाएंगे एंड इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन 10E. तो it is very good changes in form 39. It is very simple form in form 39, but for previous year form 10E, for current year form 39. Retirement benefit. For retirement benefit, total income under section 10 was exempt in 1961. Now it is come to deduction under section 19(1). तो इनको एग्जाम्पशन से डिडक्शन पे लेके आए हैं. तो उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेचमेंट, कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, दैट नाउ कम इनटू द डिडक्शन. इट इज नॉट एग्जाम्पशन, बट बेसिकली अंदर का पार्ट सेम है, बट खाली वैसे चेंज किया है कि दैट दे आर नॉट नाउ एग्जाम्पशन, दे आर डिडक्शन. 100% डिडक्शन किया था वो भी शीट आई कि 100% नहीं, वो मैं पीछे आगे लेती हूँ. उसमें है कि यदि आप मैच्योरिटी पे ले रहे हो कि बीच में पार्ट निकाल रहे हो, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा. रिटायरमेंट बेनिफिट में आपका ये पूरा खत्म हो रहा है क्या, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पस क्या है, इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है. पहले प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड सब एक अलग अलग सेक्शन में थे. नाउ they had compiled all the section in one single section, section 29. So all the deduction related to employee welfare, जितने इतने सारे सेक्शन खत्म करके एक सेक्शन में लिया है, बट इस सेक्शन में भी टेबल फॉर्म है. तो यू कैन गो थ्रू दैट टेबल फॉर्म, बट एट वन स्ट्रेस यू कैन फाइंड ऑल द थिंग्स.
अलग अलग सेक्शन में आपको अलाउंस डिसअलाउंस नहीं देखने, आपको सिर्फ एक सेक्शन देखना है, उसमें आपको सब अलाउंस डिसअलाउंस मिल जाएंगे। प्रोविडेंट फंड में 12% की सीलिंग थी। नाउ 12% की सीलिंग के लिए वो कैलकुलेशन करना पड़ता था कि कितनी है। नाउ इट यूनिफाइड मॉनिटरी कैप ऑफ ₹7.5 lakhs and it is effected from tax year, not current year. मतलब पिछले साल के लिए करंट ईयर से एप्लीकेबल है 7.5 की लिमिट, पिछले साल तक का आपका 12% का सैलरी का है। एक चीज आपको अपने एम्प्लॉइज को या अपने जो भी क्लाइंट है उनको बताना चाहिए कि अभी जो भी वो सबमिट करेंगे डिक्लेरेशन, इन दैट डिक्लेरेशन ओल्ड सेक्शन एंड न्यू सेक्शन दोनों मेंशन करें, दोनों का लिंक करके दे, क्योंकि बहुत बार जो वहां का अकाउंटेंट है वो उतना कैपेबल नहीं है। आप ओल्ड सेक्शन में कुछ दोगे, वो न्यू सेक्शन में कुछ अलग समझेगा। तो बेटर है अभी कि दोनों सेक्शन का रेफरेंस दे जो भी अभी डिक्लेरेशन देगा सैलरी का। There is no much changes in income from house property, but what they had made the changes that the annual value of two self occupied property जो अभी इस साल के लिए भी मार्च 26 के लिए भी एप्लीकेबल है, आप दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू 0 ले सकते हो, दो प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकते हो। बट उसमें एक वो किया है कि एक में आप रहते होंगे, दूसरा कोई रीजन से, कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आप उसको लेट आउट नहीं कर पा रहे हो या आप उसमें नहीं रह पा रहे हो। बट इन 2025 वो कंडीशन हटा दिए, वो बोल रहे कि कोई कंडीशन नहीं, आप दोनों दो हाउस प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में रख सकते हो एंड यू कैन टेक अ एनुअल वैल्यू एज ए 0। एंड ये एक ट्विस्ट था कि इंटरेस्ट डिडक्शन, आप लोगों को पता है इन सेक्शन 24 देयर इज अ लिमिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम इनकम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इसमें इन्होंने जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 जब लेके आए थे ना, तब इन्होंने ये जोड़ा था इंक्लूजन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इंक्लूजन नहीं था एक्चुअली, ये एक्सक्लूजन क्लॉज में आता है। तो एक्सक्लूजन क्लॉज था सेक्शन 22 में ABC, तो इन्होंने वो C को नहीं डाला था एक्सक्लूजन में। तो हम लोगों ने जब इंटरप्रेट किया था तो ये किया था कि 2 लाख के अलावा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो भी हमें अलाउबल होगा। बट किसी न किसी को फिर से याद आया कि ये कुछ उनसे गलत हो गया है, and now they changed it, they corrected their omission and उन्होंने वापस से 22C को वापस से करेक्ट करके उसमें डाल दिया है कि वो एक्सक्लूजन नहीं है, आपको वो 2 लाख के अंदर ही आएगा वो। हाँ, आगे के लिए नहीं। मतलब पहले जो बीच में लोग खुश हो गए थे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो हमारे वो 2 लाख के कैप में नहीं है, तो हमको एक्स्ट्रा उतनी हमारी इनकम कम हो जाएगी। बट वैसा नहीं है, वो 2 लाख के कैप में ही है, उनसे गलती हुई थी जो उन्होंने सुधार ली। स्टॉक इन ट्रेड में इफ द प्रॉपर्टी इज देयर फ्रॉम कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये पहले लिखा हुआ था अप टू 2 years के जगह लिखा हुआ था फॉर 2 years। नाउ दे हैड मेड इट अप टू 2 years, तो डिसाइड हो गया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से 2 साल, पहले था कि 2 साल के लिए आप लोगों को वो स्टॉक इन ट्रेड को ट्रीट करना है हाउस प्रॉपर्टी। बट फॉर 2 years में कॉम्प्लिकेसी आ रही थी कि कौन से 2 साल, ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि कौन से 2 साल आपको वो ट्रीट करना है। तो ये क्लियरिटी उन्होंने दे दी, अप टू लिख के, वहां पे 4 को हटा के अप टू लिख दिया है। अप टू कंप्लीशन ऑफ, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा तब से 2 साल के लिए आपको उसको एनुअल वैल्यू 0 लेनी है। तो 2 साल का आपको टाइम मिलता है उनको उसको सेल करने के लिए। HP लॉस हमारे जो भी हैं पुराने एक्ट के जैसे ही नए एक्ट में है, वी कैन टेक इट एज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर subsequent years, but from the income of house property only. So only these changes are made in house property. Like some small questions, सब कई बार ये थोड़ा सा लोगों को होता है कि ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है कि बिजनेस इनकम है। So this is some few examples I had taken that if residential rent है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो सबको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी।
क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें भी हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ उसको रेंट पे ही दे रहे हैं। देन ऑल्सो इट्स हाउस प्रॉपर्टी इनकम। होटल लॉज इनकम, होटल लॉज इनकम में क्या होता है कि व्हेन लाइक कोहिनूर दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑल्सो, so it should not be come in the rent. So इसकी जो इनकम आएगी कोहिनूर वाले को, उसको बिजनेस इनकम में डालना, क्योंकि वो सिर्फ रेंट पे छोड़ नहीं रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑल्सो। सो इट शुड बी इन होटल बिजनेस इनकम। को वर्किंग स्पेस में भी वो सिर्फ रेंट नहीं देते, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस एंड दे आर मेकिंग द एग्रीमेंट फॉर दैट ऑल्सो। सो इट इज ऑल्सो दैट को-वर्किंग स्पेस की भी जो इनकम आती है वो भी बिजनेस इनकम होती है। एयरबीएनबी, अभी एयरबीएनबी में बहुत लोग अपना फ्लैट लगा देते हैं रेंट पे, तो इन एयरबीएनबी इट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि एयरबीएनबी भी तो रेसिडेंशियल रेंट है, फ्लैट को ही रेंट पे लगाया है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जब आप रेसिडेंशियल फ्लैट को रेंट पे लगाते हो तो खाली फ्लैट देके छोड़ देते हो। एयरबीएनबी वाले फ्लैट में दे हैव टू गिव द सर्विसेज ऑल्सो, लाइक क्लीनिंग आपको उसको ही करनी है, क्लीनिंग के अलावा खाने का है, जो फर्नीचर से, तो वो एक तरह से वो बिजनेस इनकम में ही आ जाता है। पीजी विथ मील, दैट इज ऑल्सो द बिजनेस इनकम। मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि साथ में सर्विस इंक्लूड है कि नहीं है। इफ सर्विस इज इंक्लूडेड इन दैट, देन इट विल बी कम इनटू द बिजनेस इनकम, अदरवाइज इट विल बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग बहुत लोग कॉमर्शियल में लेते हैं, but warehousing में if you are providing any service then it will come to the business income. but यदि आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जैसे ही खाली उसको रेंट पे देके छोड़ दिया है वेयरहाउस को, उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, then it would become into the house property income. Income from other sources, earlier it was in section 56 to 59, in 2025 it become 92 to section 95. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक ये बड़ा चेंजेज आया है, बाईबैक ऑफ शेयर्स। इन बाईबैक ऑफ शेयर्स अर्लियर इट वाज इन ट्रीटेड एज ए डिविडेंड इनकम, नाउ इट बिकम अ कैपिटल गेन इनकम। यदि कंपनी अपने शेयर्स खुद ही खरीद रही है, देन इट विल बी द कैपिटल गेन, नॉट डिविडेंड। तो डिविडेंड के डेफिनेशन से इसको एक्सक्लूड किया है, ओके। एंड इसमें एक और नया इन्होंने डाल दिया है कि इफ द शेयर होल्डर इज द प्रमोटर, यदि शेयर होल्डर प्रमोटर ही है, देन इन दैट केस उनको ज्यादा पेमेंट करना है टैक्स का। एक तो जो सेक्शन में दिया है वो कैपिटल गेन के हिसाब से, प्लस उन्होंने उस टेबल में ही डिफाइन किया हुआ है कि इफ देयर इज एलटीसीजी तो कितना एडिशनल इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, इन केस ऑफ एसटीसीजी कितना एडिशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। सो इन केस ऑफ प्रमोटर इज अ शेयर होल्डर, देन टैक्स रेट ज्यादा पेमेंट होगी, कैपिटल गेन का टैक्स ज्यादा लगेगा। सो फॉर दिस पर्पस प्रमोटर का डेफिनेशन क्या, क्योंकि प्रमोटर की डेफिनेशन आप देखोगे तो कंपनी एक्ट में अलग आएगी, सेबी में अलग है, मतलब हर रेगुलेटर ने अलग अलग प्रमोटर की डेफिनेशन की हुई है। दैट्स व्हाई दे हैड मेड इट क्लियर इन इनकम टैक्स दैट हियर प्रमोटर इज डिफाइंड एज अ सेबी रेगुलेशन। सेबी में प्रमोटर की जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन विल बी एप्लीकेबल हियर। सो इन अदर केस, यदि लिस्टेड कंपनी में, यदि लिस्टेड नहीं है, इन दैट केस a person who hold directly or indirectly more than 20% of the shareholding of the company, मतलब वो प्रमोटर है चाहे नहीं है, 20% यदि शेयर होल्डिंग हो गई, उसको एडिशनल कैपिटल गेन लगेगा यदि वो बाईबैक में जाएगा तो। एंड दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम करंट ईयर, मींस इनकम टैक्स एक्ट 2025। Earlier in other sources, interest income was allowed to be deducted in dividend from dividend income and mutual fund income. It was restricted to 20% of such income. Now वो भी नहीं मिलेगा। डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड इनकम से आप कुछ भी डिडक्शन नहीं कर सकते हो, सबको पूरा, मतलब ये 20% का जो आप इंटरेस्ट का बेनिफिट लेते थे वो भी नहीं मिलेगा अब। बट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में आप ले सकते हो, वो भी सिर्फ कमीशन इनकम जो पहले भी हमें अलाउड थी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में उन्होंने चेंज नहीं किया डिडक्शन में, दे हैड चेंज ओनली
deduction from dividend and mutual fund income. And it is will be also affected from current year. For previous year आपको ये deduction मिलता है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी जो मैंने बताया बहुत सारी चीजें इन्होंने एग्जम्पशन से हटा के डिडक्शन में डाल दिए एंड बहुत सारे सेक्शन चेंजेज हुए हैं. तो जो सेक्शन 80C के या शेड्यूल 2 से टू शेड्यूल 6 ये सेक्शन 11 में उन्होंने दिया है करंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में. जो अपना टोटल इनकम सेक्शन 10 में जो एग्जम्पशन थे उसमें उसको उन्होंने सेक्शन 11 में नए इनकम टैक्स एक्ट में दिया है. एंड उसमें भी यदि आप जाओगे सेक्शन 11 में दे विल रेफर शेड्यूल्स, देन यू हैव टू गो टू शेड्यूल 2 टू शेड्यूल 8 टू चेक द एग्जम्पशन गिवन इन दिस सेक्शन. They had made one more changes in current year. National Pension System Trust or Unified Pension Scheme subscriber. So in earlier it was 60% of Indian individual corpus fund you can get the exemption, and now it is written as a खाली ये लिखा है on partial withdrawal made out of the time of the minor. मतलब इन्होंने एक ये नया क्लॉज, पहले वाला जो क्लॉज था वो अप्रैल 25 से ऐड हो चुका है, मतलब पिछले साल के लिए भी एप्लीकेबल है. सो दो नए क्लॉज एग्जम्पशन में आए हैं 12AA and 12BA. 12AA is applicable from financial year 25-26, but 12BA is applicable from tax year 26-27. Okay, so in 26-27 12BA, if you are making any payment to NPS of minor, then you can get that benefit of that. They had widening the scope of exemption. So from this current year, like tax year 26-27, disability pension, जो मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट स्क्रीन पे भी, कि जो भी आर्म फोर्स है पर्सनल्स हैं, if they are invalidated to perform their duty, then this exemption will be applicable. They will get that exemption. ये एक मोटर कंपनसेशन एक्ट का ये भी बहुत अच्छा, ये क्यों बार बार चेंज हो जा रहा है. इफ यू आर गेटिंग एनी इंटरेस्ट इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, बहुत सारे अभी एक्सीडेंट होते हैं उसमें केसेस चलते रहते हैं ट्रिब्यूनल में, तो जो अमाउंट आपने डाला है क्लेम का वो तब तक सेटल होता है, तब तक का इंटरेस्ट देती है ट्रिब्यूनल. तो वो जो इंटरेस्ट है पहले वो टैक्सेबल हो जाता था, अब नाउ दे मेक इट एग्जम्प्ट बिकॉज केस चल रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है ऑलरेडी वो पर्सन इतना सफर कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है. और थर्ड वन इज एनी इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अवार्ड और एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड. अभी जितनी भी रोड वाइडन हो रही है, जो भी गवर्नमेंट जितने हाईवेज बना रहे हैं, जितने फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, सब पे उन लोग एक्विजिशन कर रहे हैं लैंड का, तो कंपल्सरी एक्विजिशन की भी उसमें उन्होंने केसेस क्या रखा है, जो भी एग्रीमेंट यदि कंपल्सरी एक्विजिशन में नहीं हो रहा उनको किसके लिए मिलेगा, मेड अंडर प्रोविजन ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, उसके अंडर में उनको ये एग्जम्पशन अलाउ किया है. Family pension, there is change in family pension also. In last year, it is 1/3 of the pension income or 25,000. Under new regime, in old regime, it is 1/3 of pension income or 15,000, whichever is lower. In case of new regime, in current year, it is increased, and 1/3 of pension income or 25,000, whichever is lower. And it is also written in case of new regime, they will get this 25,000 and 15,000 in new old regime. Profit and gains from business and profession in tax audit. टैक्स ऑडिट की लिमिट वगैरह सब वो आप लोगों ने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर ही लिए हैं.
बस चेंजेस कितना आया है कि फॉर्म नंबर 26 कर दिया है। अपने पहले जो 3CA 3CB 3CD जो 3 फॉर्म होते थे, किसी को 3CA 3CD, किसी को 3CB 3CD, तो उसमें कंफ्यूजन होता था। नाउ दे मेक ए सिंप्लीफाइड unified forms which is form number 26 and it is prescribed in income tax rule 2026। तो यदि आपको अभी देखना है तो उसमें रूल में देख सकते हो कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से टैक्स ऑडिट की आप अपनी तैयारी कर सकते हो। एंड ड्यू डेट विल बी that is applicable for income tax act 2025। अभी जो अपने को फाइल करना है वो 3CA 3CB ही फाइल करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हमारे क्लाइंट को हमें ये वो एक बार देख के बताना पड़ेगा कि अभी हमें करंट जो चल रहा है साल, उसमें हमें इस टैक्स ऑडिट में हमें डिटेल भरनी है, तो उसके हिसाब से आप तैयारियां चालू कर दो। एंड 30 सितंबर विल बी द ड्यू डेट फॉर दैट। प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर में भी डिस्कशन काफी हुए और काफी लोगों को कंफ्यूजन है। नाउ इन सेक्शन 44 ADA सब आप लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया। नाउ इट्स इन करंट ईयर इन इनकम टैक्स 2025 इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 58। तो जो 44 AD ADA AE जो था वो सब एक ही सेक्शन में चला गया है। दैट सेक्शन इज सेक्शन 58। तो अलग अलग सेक्शन खत्म कर दिए। 44 ADA में स्पेसिफिक 44 AD में लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट ऑफ इन केस ऑफ वायलेशन, बट इन न्यू एक्ट द प्रोविजन इज कंटेन इन सेक्शन 58(8). 44 AB में लिखा हुआ था कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन का रेफरेंस दिया था कि 44 AD 5 का रेफरेंस 44 AB में दिया था, बट इन न्यू एक्ट इट इज नॉट गिवन in correspondence sections. So in tax audit is under section 63, but it has not gave reference for section 58(8). तो ये एक चेंजेस था इसमें। एक ये थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, यदि किसी को इस बारे में थोड़ा मुझे भी इलेबोरेट कर सकेंगे तो अच्छा है। इन 1961 44 AD AE AB जो भी हम प्रिजम्पटिव में जाते थे उसमें ये था कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है दैट एज्यूम दैट इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन इफेक्ट, ठीक है, बट बाकी हमें एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलते थे, करेक्ट कि नहीं? बाकी हम एग्जम्पशन डिडक्शन लेते थे, खाली बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होता था उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलता था, एग्जम्पशन नहीं मिलता था कि वो समझा जाता था कि उसमें इंक्लूडेड है। बट इन इनकम टैक्स एक्ट 2025 व्हाट इज देयर रिटन, एनी लॉस और अलाउंस or deduction allowed under the provision of the act shall not be allowed। इसका मीनिंग क्या कि मुझे कोई भी, यदि मैंने प्रिजम्पटिव स्कीम सेलेक्ट करी, then I will not be eligible to take any allowance, any deduction। इसमें ये एक पिन पॉइंट है कि मुझे यदि मैंने प्रिजम्पटिव में गई तो मुझे कोई और दूसरे एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेंगे। इवन इंटरहेड लॉसेज एंड डिडक्शन वो भी नहीं मिलेंगे। उस लाइन का मीनिंग ये आ रहा है कि यदि कोई और ने पढ़ा होगा तो यदि कोई और बता सकता है तो इसमें It's about the expenditure is incurred for other income or house property, it will not be affected. no, but it is written that under the provision of the act shall not be allowed। Entire sources of income. Yes, Therefore, if any expenditure is incurred or any loss is incurred in respect to house property, other sources, it will not affect. It will only affect the losses or expenses in the case of a discussing. So that will not be allowed. yeah, that is that I'm saying that will not be allowed। तो ये इससे हमारी मतलब जब बनाएंगे तब आपको देखना पड़ेगा कंपैरिजन करके प्रिजम्पटिव में जाएं कि नहीं जाएं। खाली वो जो पहले लोग नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है ना सर, कई बार जो प्रैक्टिकली बताऊं बहुत लोग 8% 6% ऐसे ही डाल दे रहे, मतलब वो ये नहीं देख रहे कि एक्चुअल में उसकी इनकम कितनी है, एक्चुअल उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है।
लेकिन अब इस केस में आपको वो भी देखना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड भी देखना पड़ेगा। यस यस, क्योंकि कोई भी डिडक्शन अलाउंस नहीं दे रहा तो कैरी फॉरवर्ड वाले भी नहीं मिलेंगे ना फिर आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, या फिर इसमें कुछ क्लियरिटी आएगी तो बात अलग है। One new section 44 BD for presumptive taxation for non-resident. So new section it is introduced, it is only for non-resident, and if they come to India for electronic manufacturing support, and it is covered services and technology services, and 25% of receipt उतनी ही उसकी डीम टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। नॉन रेसिडेंट को बढ़ावा देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए कि वापस इंडिया आओ, घर वापसी, जो बाहर में जितने टैलेंट गए हुए हैं, अब्रॉड जितने टैलेंट गए हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए ये उनको प्रेजेंटिव टैक्सेशन बेनिफिट दे रहे हैं कि आप इंडिया में आओ, आप टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ये सब में पार्ट लो, देन यू हैव टू पे ओनली, योर इनकम विल बी ओनली 25% ऑफ योर रिसीट, योर टैक्सेबल इनकम इज दैट मच। उसमें आपको फिर कोई एक्सपेंसेस नहीं करने, कुछ नहीं करने। एंड दिस इज ऑलरेडी implemented, and March 26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये एप्लीकेबल है सेक्शन 44 BD। बट इसमें एक कंफ्यूजन है, जो एक्सक्लूजन दिया हुआ है, एक्सप्लिट एक्सक्लूजन दिए हुए 44 AD ADA में, 44 E में, कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है या आपको ऑडिट नहीं करानी है, वो वाला एक्सक्लूजन 44 BBD में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो whether that is applicable to this section or not, ये फॉर्म आएगा तो समझ में आएगा। बट what the form had been given in that rule, उसके हिसाब से इसको भी वो एप्लीकेबल है। फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से इस सेक्शन में भी वो एप्लीकेबल होता है। अमाउंट नॉन डिडक्टेबल में पहले ये हमेशा हम एक दूसरे से पूछते रहते थे, सरचार्ज सेस अलाउड होगा कि नहीं होगा, but now it is clearly mentioned that income tax and surcharge says not allowed from income. मैट का जैसे मैंने कहा कि आपको 15% से 14% करेंट ईयर के लिए हो गया, एंड दैट मैट क्रेडिट के लिए इन्होंने काफी अच्छे चेंजेस किए हैं कि मैट क्रेडिट जो भी होगा 15 इयर्स तक के लिए यू कैन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम फर्स्ट ईयर जब उनको अवेलेबल था तब से। बट क्रेडिट यूटिलाइजेशन न्यू, अभी ट्रांजिशन पीरियड में कैसे करोगे? आपका इनकम टैक्स एक्ट 1962 का जो मैट है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उसको कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, और कब कहां तक होगा? एंड दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, कि आप ओल्ड रिजिम में थे कि न्यू रिजिम में थे। तो मैट क्रेडिट के लिए उन्होंने क्या कहा है, इट विल बी अलाउड इन एज, जो भी मैट क्रेडिट 1962 में था, सारा का सारा मैट क्रेडिट आपको 2025 में अलाउड है, ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी इफ दे कम इनटू द न्यू रिजिम। अभी क्या हो रहा था कि ओल्ड कंपनी जब न्यू रिजिम में जाती, कंपनी जब ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में जाती थी, मैट क्रेडिट पूरा खत्म हो जाता था, तो कोई भी कंपनी न्यू रिजिम में जा नहीं रही थी। सो नाउ दे चेंज दैट एंड दे अलाउड कि यदि कोई भी कंपनी न्यू रिजिम में आती है, देन दे विल अलाउड टू टेक द मैट क्रेडिट। गॉट माई पॉइंट? अभी उन्होंने क्या कर दिया अब, लेकिन इसमें एक ये चीज है कि जो डोमेस्टिक कंपनी लास्ट ईयर ऑलरेडी न्यू रिजिम में जा चुकी है, उनके मैट क्रेडिट तो गए, उनको तो नहीं मिलेंगे। अब वो क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं कि भैया तूने पिछले साल क्यों मेरा नए में करवा दिया, इस साल करवाता तो मुझे मैट क्रेडिट मिल जाता। एंड फॉर फॉरेन कंपनी, it's a difference between the tax liability and normal provision of the act under book profit। तो वो उनको कितना एग्जेम्पशन टैक्स क्रेडिट कितना मिलता है, जितना उनकी नॉर्मल इनकम आएगी और जितना उनका बुक प्रॉफिट आएगा उसका। एंड फॉरेन कंपनीज आर नॉट एलिजिबल फॉर न्यू टैक्स रिजिम। अब इसमें ये है, इसका मतलब दे विल कंटिन्यू टू टेक मैट क्रेडिट। डोमेस्टिक कंपनी यदि न्यू रिजिम में जाती है तो उनको
25% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का उतने तक का मिलता है, बट इसमें ये तो न्यू रिजिम में जा ही नहीं सकती है, फॉरेन कंपनी तो न्यू रिजिम में जा ही नहीं सकती है। इन दैट केस उनके मेट क्रेडिट का क्या? इन ओल्ड रिजिम ऑल्सो, अंडर ओल्ड रिजिम नो सेट ऑफ वुड बी अवेलेबल फ्रॉम टैक्स ईयर 26-27। अभी जो करंट ईयर चल रहा है ना, उस साल से मेट क्रेडिट नहीं मिलेगा ओल्ड रिजिम में रहे तो एनी हाउ दे हैव टू कम टू न्यू रिजिम if they want, if there is a hefty amount of MAT credit in that company, our suggestion should be कि they should shift to from old regime to new regime in current year. Then only they will get the benefit of this section. And अब के बाद में MAT credit होगा ही नहीं, तो जो मार्च 26 तक जितना MAT credit हो गया वो वहीं पर ब्लॉक हो गया है। न्यू सेक्शन में, न्यू रिजिम में मेट क्रेडिट है ही नहीं, तो अभी पुराना जो है वो ही आपको खत्म करना है। एंड वो भी यदि आपने ओल्ड रिजिम में रखा तो वो वैसे ही खत्म है, न्यू रिजिम में रखा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड हाउस प्रॉपर्टी का है तो हाउस प्रॉपर्टी में सॉरी जो मतलब उसमें 25% ऑफ उस साल की टैक्स लाइबिलिटी के का 25% मिलेगा। लाइक आई हैड टेकन वन एग्जांपल, brought forward MAT credit or as on 31st-3/26 can be set off and carry forward for 15 tax year. The set off shall be restricted to 25%. Like in old regime, आपको कोई MAT credit नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स regime में मिलेगा। रिडक्शन इन MAT दोनों में ही, ओल्ड regime में भी 14% रहेगा, न्यू टैक्स regime में भी 14% है। कैरी फॉरवर्ड दोनों में ही अभी नॉट अलाउड है 26 के बाद में, ना तो ओल्ड रिजिम में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना न्यू रिजिम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देन एक अर्थमेटिकली एग्जांपल लिया है मैंने कि यदि एक ए लिमिटेड का मेट क्रेडिट 300 रुपए है एंड उसने न्यू रिजिम में ट्रांसशिफ्ट कर लिया है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 200, मेट क्रेडिट कितना मिलेगा? 25% ऑफ 200, then he will get the tax credit of 50, so its net tax liability will be 150। और मैट क्रेडिट कितना वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगा? 300 का मैट क्रेडिट था, 50 उसने यूटिलाइज किया तो 250 नेक्स्ट ईयर के लिए लेगा, जो वो 15 इयर्स तक यूज कर सकता है। एंड दैट विल इफेक्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये भी हमारा एक टैक्स ऑडिट का पॉइंट रहता था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, कि वो हम ड्यू डेट के हिसाब से हम लिखते थे कि उसको अलाउड होगा कि नहीं होगा, उसको एड बैक करना है कि नहीं करना है। नाउ इट हैज बीन रिटन दैट द मेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। जो पहले हमने पीएफ में जो डेट होती थी उसके हिसाब से चलते थे, अब इसमें आ गया कि ड्यू डेट की फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भी आप वो भरेगा तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। पीएफ के लिए वो सेम ही ओल्ड वाला प्रोविडेंट ओल्ड वाला ही है कि प्रोविडेंट ये का जो अगर विड्रॉ करते हैं तो उसमें टैक्स लगता है। यदि आप बीच में विड्रॉ करते हो, मैं आगे लेती हूँ, रुकिए, है उसमें है टैक्स है। यदि आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंप्लीशन पे आप ले रहे हो कि बीच में विड्रॉ कर रहे हो। बीच में यदि आप कंप्लीशन पे कर रहे हो तो नहीं है, लेकिन यदि आप बीच में विड्रॉ कर रहे हो देन द परसेंटेज ऑफ योर कॉर्पस उतना ही एग्जम्प्ट मिलता है, बाकी टैक्स होता है। नहीं था, एनपीएस में भी वैसा ही किया है उन्होंने, पेंशन स्कीम में भी वैसा ही किया है। प्रोविडेंट फंड वेलफेयर फंड में कवर हो गया है ना होगा। यस 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 सॉरी नहीं, मैट क्रेडिट की जगह जैसे एएमटी नहीं है, एएमटी में अलाउड है, ये मैट क्रेडिट के लिए ही खाली किया उन्होंने। हाँ, deduction earlier deduction was in ATC to ATU, now in current income tax act it is 123 to 154। पूरा वैसा ही है जैसा था एटीसी में, 150 का ही लिमिट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये शेड्यूल्स
15 में लिखा हुआ है। अब ये शेड्यूल 15 आपको करंट ईयर में जाके, करंट टैक्स में जाके देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है, बट ऐसे कोई और चेंजेस नहीं है इसमें। उसके सब्सटेंस जो है वो सेम ही है, लेकिन डिडक्शन अंडर सेक्शन 123, ये डिडक्शन यदि आप न्यू रिजिम में जाते हो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, आप इसका डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। प्रिस्क्राइब ड्यू डेट के अंदर इसको फाइल करना जरूरी है आपको, ये ओल्ड रिजिम में भी यदि ये बेनिफिट लेना है तो। नेशनल सेविंग स्कीम जो विड्रॉल की बात हो रही है एग्जम्पशन की, वो सब अभी टैक्सेबल हो रहे हैं। कैसे कैसे एग्जम्पशन, जितने एग्जम्पशन है उन्होंने उसमें चेंजेस किया है। द एग्जाम फॉर विच डिडक्शन वाज अलाउड ऑन और आफ्टर, ये पिछले साल में एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट एक्रूड जिसके ऊपर हमने डिडक्शन ऑलरेडी डिडक्शन लिया हुआ है, उसका यदि इंटरेस्ट जो भी है मेड बिफोर 1492 देन इट विल बी टैक्सेबल and it is come into the effect from retrospective effect दिया है 29 day of August 2024। and 80 CCD पेंशन स्कीम के डिडक्शन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम फुली टैक्सेबल व्हेन विड्रॉन, एंड इसमें पुल कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस इनका डेफिनेशन उन्होंने दिया है, वो आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। आप उसमें आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको ये डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनपीएस वात्सल्य नेशनल पेंशन स्कीम माइनर बच्चों के लिए भी लेके आए वात्सल्य करके, उसमें 80 CCD में उसका भी डिडक्शन है। इफ द पेरेंट्स और गार्जियन हैड डिपॉजिटेड एनी सम लाइक इट्स maximum 50,000, if they are deposited in NPS वात्सल्य then they will get the deduction of that and it will be charged when such account is withdrawn। okay, लेकिन यदि if received on the closure, क्लोज होने के जब उसका टाइम कंप्लीट पीरियड कंप्लीट हुआ है देन आप लेते हो, देन इट डिडक्शन इज अलाउड, फुल्ली अलाउड। एंड यदि बीच में विड्रॉ करते हो, किसी को जरूरत पड़ी बीच में कुछ विड्रॉ किया, देन 25% ऑफ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड उतना ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा इसमें, बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर करेंट ईयर मीन्स इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये जानबूझ के ये सारी स्कीम ऐसे लगाते हैं कि लोग पैसे विड्रॉ ना करें और बच्चों के लिए सेविंग करें। डिडक्शन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, इसमें इन लोगों ने 80C और 80DD में इन लोगों ने डिसेबिलिटी में 3-4 डिजीज और इंक्लूड करी है, लाइक ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। एंड ये एक्ट में जो दिया हुआ है, इस एक्ट का इसीलिए मैंने नाम भी दिया है आपको कि उस एक्ट में भी जो भी डिसेबिलिटी है वो सारी इन लोगों ने इस पर डिडक्शन में कवर करी है। कि इससे रिलेटेड यदि आपने कोई भी इन सारी डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्सपेंस किया है देन यू विल गेट द क्रेडिट। बट इसमें भी अभी उन्होंने कैप लगा दिया। फर्स्ट अर्लियर इट वाज दैट कि 75,000 फ्लैट, जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसे लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उसके कोई भी प्रूफ नहीं मांगते थे। 75,000 फ्लैट यू कैन गेट द डिडक्शन, बट नाउ इन न्यू एक्ट 25,000 और द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट विच एवर इज लेस। तो बिना स्पेंड किए अभी आप 75,000 का बेनिफिट नहीं ले सकते उसमें। ओके, तो ये दो चेंजेस इसमें इन्होंने 80DD में और 80U में किया है। एंड स्टार्टअप की टाइम लिमिट खत्म होनी थी 100% डिडक्शन वाली, देन दे हैड एक्सटेंडेड इट टिल अप्रैल 1, 2030। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये मैंने टेबल दे दिया है कि कैसे कैसे एक 1961 में क्या है और 2025 में क्या है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। ओके, तो आई थिंक उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। जैसा बताया हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बिफोर अप्रैल 2026 जैसा था वैसे ही, ओल्ड एक्ट में जैसे वैसे ही है।
Like Mr. A had a house property loss in 2024-25, the loss can be adjusted against house property income under the new act in a later year. Like in business losses also, April 26 के पहले के जो भी सेट ऑफ करने हैं वो आप बिजनेस इनकम से ले सकते हो. Unabsorbed depreciation prior to 2026 भी जो भी है अनलिमिटेड ईयर के लिए 25 वाले एक्ट में ले सकते हैं. अमलगमेशन, इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि जब एमलगमेशन होता है उसमें कई सारे कंडीशन प्रिस्क्राइब होते हैं. इफ 24-25 में एमलगमेशन हुआ एंड आफ्टरवर्ड दैट दे हैड नॉट completed that prescribed condition, they had violated that, but that in year financial year 26-27 मतलब 24-25 में एमलगमेशन हो चुका, बट इस साल अभी करेंट ईयर में उन्होंने उसको वायलेशन किया, देन विच एक्ट विल गवर्न, 1961 और 2025? एनीवन पढ़ के तो बता देंगे. ऐसे अमलगमेशन 24-25 में हो चुका है, वायलेशन अभी हो रहा है जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 चल रहा है, तो कौन सा एक्ट गवर्न होगा? लास्ट लाइन में लिखा है द डीम्ड इनकम अराइजिंग अकॉर्डिंगली द डीम्ड इनकम अराइजिंग इन टैक्स ईयर 26-27 चार्जेबल टू दिस, एंड उसमें जो भी है अभी करंट ईयर के हिसाब से ही, करंट टैक्स के हिसाब से ही उसका डिस्कस होगा, क्योंकि वायलेशन करंट ईयर में, भले एमलगमेशन पहले हो गया बट वायलेशन करंट ईयर में, तो करंट ईयर के हिसाब से ही उसका होगा. ये एक बहुत बड़ा जिसके लिए हम अभी बात कर रहे थे कि एआई का स्क्रूटनी, प्लीज डोंट फॉलो ब्लाइंडली ऑन एआई, प्लीज डोंट फॉलो, क्योंकि एआई बहुत गलत गलत चीजें भी दे रहा है, हेलुसिनेशन बहुत है. एआई से आपका काम कम होता है, बट at the same time you should verify with actual act rules. आप सिर्फ एआई के आंसर पे बिलीव नहीं कर सकते हो. यू कांट बिलीव मी कि मैंने कल बच्चों को ये वेबसाइट, ये मेरी पीपीटी, मेरे ऑफिस के बच्चों को ये पीपीटी एक बार चेक करने दी, वेरीफाई करने दी, वो ऐसी ऐसी चीजें लाके बता रहे थे जो कभी मैंने एक्ट और रूल में पढ़ी भी नहीं. तो वो जरूरी नहीं है कि वो सही आंसर दे, वो बहुत बार गलत आंसर भी देता है. यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई बिफोर रिलाइंग ऑन दैट. बट ये अपने क्लाइंट को और अपने को ये देखना है कि अभी जो वो बोलते हैं ना, मैं ये इनकम नहीं बताऊंगा तो चल जाएगा, या वो इनकम नहीं बताऊंगा, या ये ट्रांजेक्शन नहीं बताऊंगा तो चल जाएगा, बट बिलीव मी दिस ईयर यदि आपने अभी तक किसी ने भी एआईएस, पीआईएस या 26S निकाला है, इस साल का निकाला है ना, लास्ट ईयर का, कितना ब्रॉडली उसमें ट्रांजेक्शन उन लोगों ने इंक्लूड किए हैं, पहले से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन उसमें आ गए हैं. मैंने मेरे क्लाइंट को मई में निकाल के दिया था, 15 मई के लगभग, जब हम ऑडिट के लिए स्टार्ट कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैडम भेजने के पहले सब मांगते हैं कि पहले दे दो, हम एक बार वेरीफाई करके रखते हैं. हमने भी उनको एआईएस टीआईएस भेजा, उन्होंने वो चेक किया, देन मेरे बच्चे जिस दिन ऑडिट के लिए गए, फिर वो अपना अलग से निकाल के एआईएस टीआईएस ले गए. उस दिन तक का दोनों में डिफरेंस था, एंड इतनी सारी डिटेल उसमें आई हुई थी ना. उस बंदे ने हमसे ऑडिट बोला एक बार रोको, फिर से मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं इससे मैच करता हूं, फिर आप ऑडिट के लिए आना. तो आप लोग अभी से ही उस पे एआई, जिसका भी नहीं निकाला होगा ना, एआईएस एक बार निकाल के अपने क्लाइंट को भेज दीजिए कि एक बार आप चेक कर लो सारा. ये मत सोचो कि आप कुछ भी अभी छुपा है. इवन आप कहीं भी जा रहे हो, गूगल आपको ट्रैक कर रहा है कि मैं यहाँ पर 2 घंटे हूं, तो मेरे गूगल में है कि मैं यहाँ 2 घंटे हूं, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहा है सब. आप कभी भी देखो, आप कोई एक चीज आप ढूंढते हो या आप बात करते हो ना, आपको फेसबुक पे किसी भी आदमी के लिए आप बात करके देखो, आपको मोबाइल पे ना उस आदमी का फेसबुक पे ना उसका यदि आपका फ्रेंड बुक में नहीं है, फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो उसका आपको आ जाएगा सजेशन. कहीं जाने की बात करते हो, उसमें बताना चालू कर देता है उसके बारे में. तो हर चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ये आपके हर क्लाइंट को बताइए कि कुछ भी अब छिपा नहीं सकता है. यदि पैन नंबर है, आधार है, या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, सब चीज टारगेट में है. फेसबुक, सोशल मीडिया सब देख रहे हैं वे लोग. इसीलिए आपने देखा ना 44 प्रिजम्पटिव इनकम में भी, प्रिजम्पटिव में जाके भी इन्वेस्टमेंट की डिटेल वो मांग रहे हैं आईटीआर में. क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो प्रिजम्पटिव में आप जितनी इनकम दिखा रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट उससे कई गुना ज्यादा है. तो
हर तरफ से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो AIS शुड बी टेकन केयर ऑफ दैट। एंड पैन, सब जगह पैन नंबर देना है, पैन नंबर पे आपके सारे डेटा आ रहे हैं। तो पैन बेस्ड लाइफस्टाइल, आप फॉरेन जा रहे हो, आप फॉरेन की इनकम ही, फॉरेन का एक्सपेंसेज ही नहीं बता रहे हो, आप उस पर TDS नहीं काट रहे हो, तो वो भी उनको ट्रैक हो रहा है। ये लोग सोचते हैं, हमारे क्लाइंट सोचते हैं हम फॉरेन जाके आ जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेन एसेट्स, फास्ट DS, यदि ये फास्ट DS मैंने अभी इसमें कवर नहीं किया क्योंकि ये इटसेल्फ 1.5 घंटे का सब्जेक्ट है। ब्लैक मनी एक्ट और ये फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर का इस बार एक इन्होंने वॉलेंट्री स्कीम निकाली हुई है। आप यदि अभी तक आपके किसी भी रेसिडेंट क्लाइंट ने उनकी फॉरेन एसेट डिक्लेयर नहीं की है, या फॉरेन एसेट से इनकम कोई भी हुई है, फॉरेन इनकम वो डिक्लेयर नहीं की है, दिस ईयर यू कैन डिक्लेयर दैट एंड यू विल गेट द रिलीफ इन इनकम टैक्स। तो वो एक उनको आप बता दो कि अभी तो यदि जिस समय वॉलेंटरी निकालते हैं ना स्कीम, उसके तुरंत बाद ही कुछ करना होता है, इसलिए पहले वॉलेंटरी निकालते हैं वो। तो फॉरेन एसेट भी उनके पास में डिटेल आ ही रही होगी। देन TDS मैचिंग, TDS कटा हुआ है, इनकम में नहीं बता रहे, तो वो भी मैच करना जरूरी है सबको। जरूर 26A से जरूर मैच कीजिए कि वो TDS यदि कटा है तो वो इनकम में है कि नहीं है। F&O और शेयर ट्रांजेक्शन, इतने सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, बोलेंगे इसमें नहीं है, नहीं बताते, बट 26A में आता है, AIS में दिखता है सब। तो उसमें भी ये होता है कि F&O में आ रहा है, 26A AIS में दिख रहा है, बट दे आर सेइंग कि इसमें कुछ भी नहीं, आप अदर सोर्सेस में डाल के खत्म कर दो, नहीं तो ITR चेंज करनी पड़ेगी। तो ITR चेंज होती डिटेल ज्यादा लगेगी, बट डोंट डू दैट। यदि उसमें शेयर ट्रांजेक्शन दिखा रहा है तो शेयर ट्रांजेक्शन में ही, कैपिटल गेन में ही डालिए उसको, उसका हेड चेंज मत कीजिए, नहीं तो स्क्रूटनी पक्की आएगी। ये सब थोड़ी बहुत छोटी छोटी मैंने चेकलिस्ट दी है, जिसपे अपने को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द स्क्रूटनी एंड असेसमेंट, सो प्लीज डू दैट चेकलिस्ट। डिविडेंड इनकम डिक्लेयर ही नहीं करते, बताते नहीं है, दूसरी कोई पर्सनल फाइल में पड़ा है। प्रोप्राइटरशिप फर्म वाले बहुत करते हैं ये, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म की डिटेल देंगे, उसके हिसाब से रिटर्न फाइल कर दो, खुद की डिटेल ही नहीं देंगे प्रोप्राइटर की। तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज नाउ मैंडेटरी, बिकॉज डिविडेंड पे भी TDS कटने लग गया है। एंड डिविडेंड पे TDS नहीं भी कटा ना तो भी AIS में आ रहा है आपको कि इतना डिविडेंड है। तो यदि आपको डिविडेंड ज्यादा आ रहा है तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह वो जा सकते हैं कि आपको डिविडेंड इतना यदि आपकी इनकम में आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो वो शेयर्स कैसे आए, आपका इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, इसमें इनकम ही नहीं दिख रही आपकी। तो लाइक दैट दे कैन गो थ्रू दैट। AIS रिकंसिलेशन का मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, उसमें AIS में अभी आप लोग सबका देख लो, यदि वो आपके क्लाइंट को भेज दो, उसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन he or she is not agreed with that transaction, you can give your comments in portal in their login. डेट कब माना जाता है कि फाइनल है, इसके बाद चेंजेस दिए हैं? कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि AIS खुद से डेटा नहीं बना रहा। आप समझो लॉजिक, वॉट एवर इनपुट दे आर गेटिंग, दे आर गिविंग दैट आउटपुट। वो खाली डेटा को कंपाइल करके आपको दे रहा है। अभी सपोज अभी कोई क्लाइंट ने TDS की रिटर्न अभी तक फाइल ही नहीं करी है, March 26 की, तो यदि आपका कोई ने 26AH की रिटर्न फाइल नहीं करी है, मतलब आपका TDS काटा है लेकिन अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपके AIS में तो अभी तक भी नहीं दिखेगा। तो जब वो TDS की रिटर्न फाइल करेगा तो आपके 26AH में दिखेगा। तो उसमें इनकम टैक्स तो कुछ बोल ही नहीं सकता है, वो तो कंपाइलेशन कर रहा है खाली डेटा के। तो डेटा आने के बाद कितना दिन? डेटा जब रिटर्न भरने के 15 दिन के अंदर हो जाता है सर। अभी तक का तो मैंने देखा है 15 दिन के अंदर आ जाता है। मार्च का GST का डेटा? GST का नहीं आता, पिछले साल भी नहीं आता था, पिछले साल रिटर्न भरने तक भी नहीं था मार्च का डेटा। अभी भी हम भी ये चीज फेस कर रहे हैं कि मार्च का GST का डेटा नहीं आया अभी तक भी। आई थिंक दे आर ब्लॉकिंग आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट एनुअल रिटर्न, बिकॉज एनुअल रिटर्न में मार्च में बहुत सारे लोग चेंज करते हैं ना रिकंसिलेशन में। तो क्योंकि लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मार्च का GST का टर्नओवर मैच नहीं हो रहा था। अभी भी हो रही है ये प्रॉब्लम, अभी भी है। इस साल भी मार्च का GST टर्नओवर अभी तक नहीं आया है।
नहीं आया सर। तो दिस इज द की टेक अवे एंड नाउ थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। एंड जो भी उसमें, ये हम लोग भी अभी लर्निंग स्टेज पे ही है क्योंकि ये नया एक्ट है। एंड अभी भी वे लोग कुछ कुछ उनकी जो भी करेक्शन हो रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट यू वेन एवर यू इम्प्लीमेंट एनीथिंग, उसी समय इनकम टैक्स की साइट पे जाके देखिए एंड उसमें कुछ भी करेक्शन वरेक्शन हो तो देख के ही आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए। Because every day they are changing, and please go through a circular notification whatever you are getting for income updation or error of Income Tax Act 2025. So happy learning and happy income tax filing for this year. Thank you. Thank you. मैडम ने देखो कितना मेहनत किया, कितने पेपर्स, वर्किंग पेपर्स रखे हैं, ऑडिट ट्रेल्स। एंड मैडम का टॉपिक के लिए देखो कितने 50-60 लोग सफाई करते हैं अभी तक। पता नहीं आपका नाम पड़ा तो आ जाओ। नहीं, no, I have selected a relevant topic for you. इसलिए I know you will not be able to cover in one session capital gain, so I have kept capital gain separately out of you. So capital gain will be a separate pure session, but that is a big topic, you know. So thank you, Arun Nasyam, for coming on short notice and raising this topic on short notice. Thank you, and requesting our deputy to give a formal vote of thanks. And so please feel free to have your suggestion. I am somebody will come and do something like this. I have done suppose every day I am getting यार सीखता है नहीं बोलता, मैंने उसको ढूंढा तो बोलता यार मेंशन ही करो। अब वीडियो का कितना है, जीएसटी कितना है, वो सब करके you can see that message again. If you wrote to WhatsApp, you will see what is your involved in this, और ड्यू के लिए कितना है, प्रेक्षण सीएस का कितना है, ऑफिस का मैंने वो चेंज किया। पहले कितने पेजेस वेस्ट होते थे, हर बार 1500-1600 का प्रिंट लेके आता था, 70 पेज प्रिंट लेके आता था अटेंडेंस के लिए। अभी सिर्फ 10 से 12 पेज आते हैं, 60 पेज पर संडे सेशन वी आर सेविंग। So it is our responsibility to give back to the society, and that is the reason I am bringing young coordinator, young CS pressers, so that they also we have to, it is our responsibility to give back to the society. So groom our new CA members also. That is the reason I have created these young members, and out of the 30 members I have done 3-4. So I mean all these new members only, and most of them new members. So everywhere I'll bring one coordinator, one coordinator group, so that they will also know, and from today will start preparing to become convener or whatsoever. Anyway, so I'll request our deputy to give a word of thanks. Good afternoon, friends. Thank you, Lalit-ji. As we know that our own House Speaker, CA Pinky ji, WRC member, RCM, and you know that she has enlightened us on the highly relevant topic of the different heads of the income, which is related to 1961, which we are going to file in this year, and Income Tax Act 2025, which is in running period. We have to advise our client. So she has explained everything in the detail with the topic, and any queries, she is always be there with us to explain us. As the Sanskrit says, that udyamena siddhyanti karyena manoratha. So success is achieved through the dedicated efforts and not merely a wishes. So you have to try our efforts and do our best to file the income tax return. Any queries, ma'am is always there with us. So I request all the members to give a loud round of applause to the team Pinky for giving such a wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you.
आपका